just met Swamiji less than half a minute ago, and the first thing that met me was his smile. I mean, it's a warm and it's a very inviting smile, as you can see. And so the moniker, Smiling Swami, certainly is fitting in this case, right? So a little bit about Swamiji. He is a graduate of the prestigious IIT in Mumbai. Does anyone know what IIT means? Yeah? Indian Institute of Technology. Ah, I see. I thought it meant incredibly intelligent teacher. But yes, I think it is Indian Institute of Technology. So that is just one of many things that he has done. He's also spreads Sri Sri Ravi Shankar's message of love and peace around the world. And he oversees and manages several service projects. For instance, the Rural Women's Empowerment Program, preschooling for children, as well as disaster relief for Warren Alberta. So how's everyone? Good? How many of us are feeling good? Very good, very, very good. How many of us are in this category? Okay. How many of us are in the middle? Not so good, not so bad. Okay types. Okay, 1, 2, 3. How many of us are not feeling good? 4, 5. How many of us are not feeling good at all? 1. Okay. That means I have to work with only one person. When people are feeling good or very good, then I have no job to do. It's very easy and at the same time very difficult. It's very easy because I don't need to prepare anything. I don't prepare anything. Because it's a refresher program, I would like to do what the participants want to do. Isn't it? What they would like to understand, any questions they have, what are the things we should discuss today, what are the things we should do today. So from that perspective, it's easy. I don't need to plan anything. Oh, I will do this or I will do that. At the same time, it becomes difficult also because since I am not prepared, then I have to be ready with everything, whatever participants want. Okay. Knowing all the facts. Okay. But we still do what our body said, right? What's the normal. The instinct. Yeah. The instinct is to frown, right? वतन टीवी देखने वालों को राजीव नायक का नमस्कार। आज देखा जाएगा तो 90% लोगों को जो भी बीमारी है वो सब स्ट्रेस की वजह से आती है। हम लोग काफ़ी सुन चुके हैं, स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आता है, यहाँ से स्ट्रेस आता है, वहाँ से स्ट्रेस आता है, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा है वो निकालने का कैसे, स्ट्रेस जाएंगे कैसे। तो आज हमारे साथ स्वामी जी हैं, स्वामी प्रज्ञपाद। वो बोलते हैं कि वो स्ट्रेस निकाल सकते हैं, उनके पास फॉर्मूले है स्ट्रेस निकालने के। वो इंजीनियर है और आज ये पहला इंजीनियर ऐसा अल्बर्टा में आया है जो पैसा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है लेकिन हंसी कमाने की कोशिश कर रहा है। तो 4 शब्द उनके साथ बात करेंगे। इंडिया से आए, इंडिया में सबसे बड़े कॉलेज में IIT में पढ़े हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये। अल्बर्टा इज़ फेमस फॉर इंजीनियर्स एंड ऑल क्वालिफाइड पीपल। आप ये सब छोड़ के इस लाइन में कैसे आए आप? बस समाज के लिए कुछ करने की इच्छा हुई। IIT भी इसीलिए गए थे कि कुछ पैसे कमाएंगे फिर समाज के लिए कुछ करेंगे। लेकिन जब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी के कांटेक्ट में आया तो पता चला कि सेवा करने के लिए पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी हम सेवा कर सकते हैं। और फिर मैंने टीचर्स ट्रेनिंग किया, ध्यान सिखाने का सब पूरा ट्रेनिंग करके फिर अभी जगह जगह जाता हूँ, खुशी बांटता हूँ और खुश रहता हूँ। आज की तारीख में सुना है कि आर्ट ऑफ लिविंग इज़ मोस्ट सक्सेसफुल इन वर्ल्ड। 140 कंट्रीज़ में आर्ट ऑफ लिविंग है और ईरान, इराक में काफ़ी काम किया है, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में काफ़ी काम हुआ है। लोग स्ट्रेस से मुक्त हो रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। ऐसा क्या फार्मूला है कि जो आर्ट ऑफ लिविंग में कि लोग हंस सकते हैं, लोग स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं? आर्ट ऑफ लिविंग का जो सेंट्रल है वो है एक ब्रीदिंग टेक्निक, सुदर्शन क्रिया करके। तो ये सांस लेने से हमारा मन शांत होता है। अगर हम देखेंगे कि हमारा जो मन की स्थिति है, मन के जो स्टेट है, उससे हमारा ब्रेथ कनेक्टेड है। जब हम गुस्सा करते हैं तो एक तरीके से सांस लेते हैं, जब हम थके हुए होते हैं तो एक तरीके से सांस लेते हैं, जब थक कर घर आते हैं, सोफ़ा पे बैठते हैं तो सबसे पहले आवाज़ कौन सी निकलती है? और दुनिया भर में कोई भी आदमी हो ऐसी ही सांस लेगा।
तो उसी तरह हर हमारा जो मन का स्टेट है उससे हमारी सांस जुड़ी हुई है। तो अगर हम खुश रहने की सांस लेना सीख जाए, टेंशन फ्री होने की सांस लेना सीख जाए, तो हम टेंशन फ्री हो जाते, खुश हो जाते। बहुत सिंपल है, आसान है। कोर्स में कितने दिन के लिए आना पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा? ये 3 से 4 दिन का कोर्स है। 3 घंटे 4 घंटे रोज का होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्राइडे को शाम को, सैटरडे संडे थोड़ा ज़्यादा टाइम, तो उसमें आसानी से ये सांस लेना सीख जाते हैं, अलग अलग तरीके के सांस सीखते हैं। तो इससे फिर जीवन में एक ऐसी खुशी का अनुभव होता है, एक ऐसे आनंद का अनुभव होता है, एक ऐसे एंथुजियाज्म का अनुभव होता है, जिसके कारण फिर हम हमारे जीवन में जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। पढ़ा है कि ये सुदर्शन क्रिया एक क्रिया है कि जो अमेरिकन रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह देख रहे हैं कि वो मेडिकली ऑल्सो प्रूव करती है कि ये सुदर्शन क्रिया करने से काफ़ी स्ट्रेस रिलीव होती है, काफ़ी डिसीजेस की मुक्ति होती है, काफ़ी डायबिटीज़ को और काफ़ी रिकवर हो सकती है। उसके बारे में कुछ बता सकते? बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, दुनिया भर में चल रहा है, सिर्फ अमेरिका में नहीं, उधर यूरोप में भी चल रहा है, नॉर्वे, इटली, जर्मनी, इंडिया में भी चल रहा है, सिंगापुर में भी चल रहा है, और यूएस कनाडा में भी चल रहा है। अलग अलग एस्पेक्ट्स पे चल रहा है। और बस एक यही है कि सब जगह यही पता चलता है कि सुदर्शन क्रिया करने से मन इतना शांत होता है, और मन की शांति के कारण फिर अलग अलग बीमारी से लोग बाहर निकल रहे हैं। बहुत सारे हमारी जो बीमारी है, डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, ये सब लाइफस्टाइल रिलेटेड है। तो अगर लाइफस्टाइल रिलेटेड में हम ये थोड़ा सा सांस लेना सीख जाए, तो लाइफस्टाइल कैसे भी हो, वो जो तनाव होता है, टेंशन होता है लाइफस्टाइल के कारण, वो सुदर्शन क्रिया के जरिए बाहर चले जाता है। तो इससे हम बीमार नहीं रहते। हम लोग 4 दिन का कोर्स करें और फिर हम लोग पूरी स्ट्रेस से मुक्ति मिले, या हम लोग हंसना चालू करें, ऐसा इमीडिएट हो जाएगा कि हमको एक कंटिन्यूसली कुछ करना पड़ेगा उसमें? इमीडिएट एक दिशा तो मिलेगी ज़रूर, कि रास्ता कौन सा चलना है वो तो पता चलेगा। फिर रास्ते पे तो चलना भी तो है ना, रोज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, 10-15 मिनट। फिर ये शिविर करने के बाद आप एक लाइफ मेंबर जैसे बन जाते हैं। तो फिर आप हर हफ्ते फॉलोअप सेशन के लिए आ सकते हैं, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है। तो आप आइए उससे, और फिर अगर आप कुछ गलती वगैरह करते तो टीचर्स वहाँ हैं, आपकी गलती भी सुधार देंगे। तो ये ऐसा करते 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 फिर 1 साल में, 2 साल में तो मन में इतना बदलाव आ जाता है, एक खुशी की ऐसी लहर आ जाती है, फिर वो कोई परिस्थिति उसको हरा नहीं सकती। ये भागदौड़ की ज़िंदगी में हम लोग टाइम कैसे निकालें एक कोर्स के लिए? देखो, ये है ना, जो भी हम करते हैं ये एक इन्वेस्टमेंट जैसा समझना है, कि अगर हम 10-15 मिनट रोज़ अपने आप के लिए निकालेंगे, जब हमारी मन, बुद्धि, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो हम बहुत और एफिशिएंटली काम करेंगे, और एफिशिएंटली काम करेंगे तो हमें और ज़्यादा समय मिलेगा। जो व्यक्ति सुदर्शन क्रिया करता है उसके जीवन में समय की कमी नहीं होती, वो हर चीज़ जीवन में जो चाहता है कर पाता है। तो 10-15 मिनट के इन्वेस्टमेंट से अगर 4 घंटे और ज़्यादा जीवन में मिल जाए तो ये ज़्यादा अच्छा ही है ना। अगर स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी लेनी है तो बाकी दूसरे कुछ फॉर्मूले नहीं है? फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं, हमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूला बताए, लेकिन जब स्ट्रेस आता है तो वो सब फॉर्मूला हम भूल जाते हैं, है ना। तो सुदर्शन क्रिया क्या है, ये रूट से, जड़ से ये स्ट्रेस को निकाल देती है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में हम बात नहीं कर रहे। स्ट्रेस मैनेजमेंट में स्ट्रेस फिर भी है, हम तो स्ट्रेस एलिमिनेशन की बात करते हैं, कि स्ट्रेस को जड़ से उठा के फेंक दो, कि इसका वो पौधा फिर से वो वापस आए ही नहीं, वो पेड़ वापस आए ही नहीं। तो वो एक एक जो स्ट्रेस के पेड़ है हमारे जीवन से निकलते जाते हैं, हम फिर तनाव होता ही नहीं है।